ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ وہ تہران کے سب سے بڑے ہسپتال میں میڈیکل چیف تھے اور اسی بنا پر ان کے شاہی خاندان سے روابط تھی۔ یہی روابط ان کی بدقسمتی کا باعث بن گئے تھے۔ انقلاب سے پہلے جب شاہ سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد ملک سے فرار ہو چکے تھے، ڈاکٹر علی رضا بدستور اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انقلابی انہیں ان کے دفتر سے گرفتار کر کے لے گئے اور وہ دوبارہ کسی کو نظر نہیں آئے۔ جمشید علی ڈاکٹر علی رضا کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ اس وقت ماپارا تہران یونیورسٹی کی طالبہ تھی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں رہا تھا۔ اس کڑے وقت میں اپنوں نے بھی نگاہیں پھیر لیں۔ وہ باپ کے بغیر ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جمشید علی نے بالآخر انہیں قائل کر لیا اور وہ انہیں کراچی لے آئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ زہرا بیگم ماپارا کی موجودگی کو کسی صورت برداشت نہ کر پاتی۔ وہ پہلے ہی جمشید علی کے بارے میں مشکوک رہا کرتی تھی۔ اس مسئلے کا حل جمشید علی نے یہ نکالا کہ ماپارا کو میری گورننس بنا دیا۔ وہ بھی حالات سے مجبور تھیں، ورنہ ان جیسی حسین، پرکشش اور اعلیٰ خاندان عورت کبھی بھی گورننس بننے پر راضی نہ ہوتی۔ بعد میں وہ سچ مچ مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر میری پرورش اور تربیت کرنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ شکر ہے کہ حسن علی نے اپنی دھمکی پر عمل نہیں کیا، شاید اس لیے بھی کہ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر سکول کھل گئے تھے۔ اب میں اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ 6-7 دن بستر پر پڑا رہتا۔ البتہ صبح شام والی ایکسرسائز جاری تھی، جو فزیکل تربیت ہوتی اور شام کو سیلف ڈیفنس کی کلاس ہوتی تھی، کبھی پیلس کے لان پر اور کبھی ساحل سمندر پر۔ مہاپارا کی کوشش ہوتی تھی کہ سیلف ڈیفنس کی کلاس کے موقع پر وہ ہمارے ساتھ رہیں، غالباً اس وجہ سے کہ حسن علی پھر میری مرمت نہ لگا دے۔ اس کی ایک وجہ اور بھی تھی، مہاپارا اور حسن علی اس موقع کو ملاقات کا ذریعہ بنا لیتے تھے، ورنہ دیگر اوقات میں ان کا ملنا جلنا دوسروں کو مشکوک کر سکتا تھا۔ خاص طور سے جب ہم ساحل پر جاتے تھے تو مہاپارا ضرور ہمارے ساتھ ہوتی تھی۔ حسن علی مجھے مشقوں میں لگا کر خود مہاپارا سے باتوں میں لگ جاتا تھا، اور ظاہر یہ گفتگو کچھ اس قسم کی ہوتی تھی کہ میرا نہ سننا ہی بہتر ہوتا تھا، لہذا میں جان بوجھ کر ان سے دور نکل جاتا۔ اس روز بھی مہاپارا ہمارے ساتھ آئی تھی۔ میں سوئپ کک کی مشق کر رہا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ ان دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ مہاپارا کے تاثرات غصے والے تھے، البتہ حسن علی کا چہرہ حسب معمول سپاٹ تھا، سوائے آنکھوں کی ہلکی سی سرخی کے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شاید مہاپارا کو کسی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کا اندازہ ان کے نفی میں ہلتے سر سے ہو رہا تھا۔ اچانک حسن علی نے فضا میں کھونسا چلایا اور پلٹ کر دور جانے لگا۔ مہاپارا ریت کو ٹھوکروں سے اڑاتی میری طرف آنے لگی۔ جھگڑا ہو گیا پھر؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ تم سے کس نے کہا؟ کہا تو کسی نے نہیں، لیکن بندہ کم عمر ہونے کے باوجود سر میں دماغ اور دماغ میں عقل رکھتا ہے۔ غالباً استاد محترم آپ کو نکل چلنے کے لیے اکسا رہے تھے۔ تم میں کیسے؟ وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ بات واضح تھی، میرا مذاق سچ نکلا تھا۔ میں بھی سنجیدہ ہو گیا۔ آپ کیوں انکار کر رہی ہیں میری وجہ سے؟ انہوں نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک وجہ یہ بھی ہے، اور پھر ہم جمشید علی سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ آپ نے پاپا کو اتنا ہوا کیوں بنا رکھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو ملازمت سے برطرف کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ، آپ کا مجھ سے کتنا ہی قریبی تعلق صحیح، لیکن دنیا کی نظروں میں آپ میری گورننس ہی ہیں۔ تم نہیں سمجھو گے، وہ افسردگی سے بولی۔ تم ابھی جمشید علی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو آپ بتا دیں، میں نے موقع غنیمت جان کر کہا۔ میں بھی نہیں سمجھا سکتی، وہ بولی۔ یہ بات تم خود جان جاؤ گے وقت کے ساتھ۔ میں نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مجھے عقب میں کسی گاڑی کے انجن کے گھرانے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، یہ کھلی جیپ تھی جس کے فٹ بھر چوڑے ٹائر اسے ساحل کی نرم ریت پر بھی یوں توڑا سکتے تھے جیسے پکی سڑک پر۔ اس کے پچھلے حصے سے 3 افراد اترے جنہوں نے اپنے منہ پر رومال باندھ رکھے تھے۔ چوتھا نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ جیپ سے اترنے والے ہماری طرف لپکے۔ ان کے عزائم بھانپ کر مہاپارا مخالف سمت میں بھاگی۔ ساتھ ہی انہوں نے چلا کر مجھے بھی بھاگنے کو کہا، لیکن خود 2 قدم بھاگنے کے بعد اپنے ہی شلوار کے پائنچے میں پھنس کر گر پڑی۔ ان دنوں چوڑے پائنچوں کا فیشن تھا جو ان کے حق میں برا ثابت ہوا تھا۔
एक रुमाल पोश ने बआसानी उनके हाथ पुश्त की तरफ मोड़कर उन्हें बेबस कर दिया था। बाकी दो में से एक मुझ पर झपटा, जैसे चील चूजे की तरफ झपटती है। मैं जरा सा पीछे हटा, जैसे डर गया था, और जमीन पर बैठते हुए स्विफ्ट किक लगाई, जिसकी कुछ देर पहले मशक कर रहा था। एक तो रुमाल पोश को 15-16 साल लड़के से इस मशाकी की तवक्का नहीं थी। दूसरी किक ने बड़ी उम्दगी से काम किया था। वो जिस तरह गिरा था, अगर पुख्ता फर्श होता तो इसकी एक आध हड्डी जरूर टूट जाती। मेरी बदकिस्मती को नरम रेत पर गिरा और उसने लेटे लेटे अपने सतून नुमा टांग घुमाकर मुझे मारी और मैं जमीन बोस हो गया। तीसरा जो रिवाल्वर संभाले खड़ा था, जोर से हंसा। क्या साला, सामने की औलाद, अपना मुंह बंद कर। गिरने वाला उठते हुए बोला। इसका ख्याल था कि अब मैं शराफत से खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। उसका ख्याल था कि अब मैं शराफत से खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा, तो उसका यह ख्याल गलत साबित करते हुए मैंने उसके रानों के दरमियान किक मारी। उसका मुंह यूं खुल गया जैसे दुनिया में यकलख्त हवा की कमी हो गई हो। रिवाल्वर वाला फिर हंसा तो उसके मुंह से गालियों का फवारा उबला था। बेशतर हिस्सेदार रिवाल्वर वाला था, अलबत्ता कुछ गालियां मेरे हिस्से में आई थी। फिर उसने मेरी टांग पकड़कर यूं मरोड़ी कि मैं कमर के बल उल्टा हो गया। अब मैं इस पोजीशन में था, अगर उठने की कोशिश करता तो मेरी रीढ़ की हड्डी या टांग में से कोई एक चीज जरूर टूट जाती। अभी मैं इससे बचने की फिक्र ही में था कि उसने अपनी भारी जूते से मेरे सर पर जड़ लगाई। मुहावरे से कतई नजर मुझे सचमुच दिन में तारे नजर आने लगे थे। इस कैफियत में मुझे महापारा की चीख सुनाई थी। मैंने तड़प कर उठने की कोशिश की और इस बदमाश की मुश्किल आसान कर दी जो मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं उठ खड़ा हुआ, उसने मुझे उठाकर जीप के फर्श पर फेंक दिया। फौरन ही मेरे ऊपर महापारा गिरी थी। इस दौरान में मेरी आंखों के सामने दुनिया एक बार फिर रोशन हो चुकी थी। मैंने महापारा के नीचे से झांका तो मुझे हसन अली जीप की तरफ आता नजर आया। इस वक्त वो बिला शुबा उड़ रहा था। अभी वो 10-12 गज दूर था कि जीप धचके से स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। सूर्य गरूब होने वाला था, इस वजह से साहिल पर लोग ना होने के बराबर रह गए थे, और जो रह गए थे वो हैरत और खामोशी से अगवा के सनसनीखेज मंजर को देख रहे थे। इनके ख्याल में शायद बदमाश महापारा को अगवा करके ले जा रहे थे, जबकि मैं जानता था कि बदमाश मुझे उठाने आए थे। महापारा उन्हें बोनस में मिल गई थी। लोगों ने ड्रामों और फिल्मों में इस किस्म के ड्रामे जरूर देखे होंगे, लेकिन हकीकी जिंदगी में ऐसा मंजर पहली बार देख रहे थे। बहरहाल किसी ने मुदाखलत की कोशिश नहीं की। वो देख चुके थे कि बदमाश मुसल्ला थे और दखल दर माकुलात का इनाम एक गोली की सूरत में मिलने का पूरा इम्कान था। लिहाजा किसी ने दखल नहीं दिया। जो ज्यादा अक्लमंद थे वो फौरन 9-11 हो गए, ताकि बाद में अदालत और थाने के चक्रों से बचे रहे। हसन अली जरा आगे निकल गया था, लिहाजा जब उसने महापारा की चीख सुनी तो उसे देर हो चुकी थी। इसके करीब आने से पहले ही जीप चल चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी कुव्वत से जीप के पीछे दौड़ता रहा। बदकिस्मती से वो गैर मुसल्लह था, वरना उसका निशाना इतना अच्छा था कि वो जीप का टायर फाड़ कर बदमाशों को रुकने पर मजबूर कर सकता था। मैं अपने ऊपर पड़ी महापारा के नीचे से सब कुछ देख रहा था। उठने से यूं कासिर था कि एक खबीस ने मेरी कमर पर पांव रखा था तो दूसरे ने टांग पर और सर पर महापारा पड़ी हुई थी। मैं कती बेदस्तो पा था। वो शायद फिल्मी विलनों की तरह मेरी बेबसी पर कहके लगा रहे थे, लेकिन नहीं, वो हसन अली पर कहके लगा रहे थे, जो किसी फिल्मी हीरो की तरह अपनी हेरोइन को बचाने के लिए एक ताकतवर जीप से रेस लगा रहा था। वो लोग हसन अली से पूरी तरह लुत्फ उठा रहे थे। शायद इस वजह से उन्होंने ना तो जीप की रफ्तार बढ़ाई और ना ही हसन अली को गोली मारी। हसन अली खासा करीब आ गया था। अचानक उसने हवा में लंबी जस्त लगाई और जमीन पर गिरते गिरते जीप का पिछला जंगला उसके गिरफ्त में आ गया। ये तो कुत्ते की तरह चिमट गया है, किसी ने गाली देकर कहा। ओए गोली मार इसे। ठहरो, दूसरे ने कहा। जरा देखने दो, ये कब तक लटका रहेगा। उस्ताद तमाशा बन रहा है, ऐसा ना हो कि पुलिस पीछे लग जाए, पहले वाले ने कहा। अब जीप साहिल के निस्बतन वीरान हिस्से की तरफ जा रही थी, मगर यहाँ भी लोग खासी तादाद में मौजूद थे और जीप के पीछे घिसटता आदमी ऐसा मंजर नहीं था जिसे लोग नजरअंदाज कर देते। ये बात उस्ताद की समझ में आ गई। उसने हसन अली को गोली मारने का फैसला किया। गोली चलने की आवाज सुनते ही मेरा दिल रुक गया था। शदीद धुंध में पार जाने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं काजल के पास जाना चाहता था, जो खाई के दूसरी तरफ थी। दरमियान में गहरा नाला था, इस पर से एक साल खोरदा सा झूलता हुआ पुल गुजरता था। काजल दूसरी तरफ खड़ी मेरी तरफ देख रही थी। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। इसके बेबनाल लंबे और घने बाल खटा की तरह इसके चारों तरफ छाए हुए थे। मैं कितने अरसे बाद उसे देख रहा था और अब मैं इससे एक लम्हे भी दूर नहीं रह सकता था। काजल, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, मैंने चिल्ला कर कहा। यूसुफ आ जाओ, काजल बोली। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। लेकिन कैसे आऊं, मैंने गहरी खाई की तरफ देखकर कहा। वो मुस्कुराई। जाने वाले कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं। मैंने दीवाना वार इधर उधर देखा। बिलाकर मुझे ये झूलता हुआ पुल नजर आ ही गया। इसकी हालत नहायत खस्ता हाल थी।
लेकिन काजल तक जाने के लिए मैं पुल सराज से भी गुजरने को तैयार था। मैंने पुल पर कदम रखा तो रस्सों से टिके उसके साल खोरदा तख्ते चिचराने लगे थे। इसी लम्हे तेज हवा चलने लगी और पुल ढोलने लगा। मैंने बमुश्किल उसे थाम कर खुद को गिरने से बचाया। नीचे गहराई मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं कदम ब कदम आगे बढ़ने लगा, लेकिन हर कदम पर टूटते तख्तों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हवा की शिद्दत में इजाफे से पुल ने बुरी तरह झूलना शुरू कर दिया था। मैंने सामने काजल की तरफ देखा, वो मेरी मुंतजिर खड़ी थी। अचानक धुंध की शिद्दत में इजाफा होने लगा और काजल मेरी नजरों से ओझल हो गई। काजल, मैंने चिल्लाकर कहा और बेताबी से एक कदम आगे बढ़ाती है। अगले लम्हे मैं तारीख कला में गिर रहा था। यकदम मैं उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म पसीने में शराबूर था और दिल तेजी से धड़क रहा था। तो ये सब ख्वाब था। मैंने सर झटका। अचानक मुझे कोई अजनबी सा एहसास हुआ, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। कैबिन आहिस्ता आहिस्ता डोल रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। हाँ, आवाज, इंजन की आवाज क्यों नहीं आ रही थी? बहरी जहाज का इंजन रोकने का मजाज नहीं था। अफराद ना कोई कारकुन, हत्ता के कप्तान को भी इंजन बंद करवाना होता है तो चीफ इंजीनियर ही से कहता है। इसके बावजूद खलीज का इंजन रुका हुआ था। एक बहरी जहाज का इंजन इसके दिल की तरह होता है। ये चलता है तो जहाज चलता है, और जब ये रुक जाता है तो जहाज भी मुर्दा हो जाता है। इंजन ही जनरेटर की मदद से जहाज की जरूरियात की बिजली फराहम करता है। जहाज के बहुत सारे कुल पुर्जों को इसी की मदद से हाइड्रोलिक पावर मुहैया की जाती है। मैं बिस्तर पर लेटे हुए सोच रहा था कि इंजन क्यों बंद है। अगर इसे किसी खराबी की वजह से बंद किया गया है तो मुझे क्यों नहीं खबर दी गई? अगर कोई हादसा हो गया था तो अलार्म क्यों नहीं बजाया गया था? सबसे बढ़कर इतना गैर मामूली सकूत क्यों तारी था? मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि कोई बात हो चुकी थी। बिस्तर पर पड़े हुए मैं असल हालात नहीं जान सकता था। लिहाजा मैंने उठकर यूनिफॉर्म पहनी और बाहर गैलरी में निकल आया। कप्तान सलाहुद्दीन के कैबिन का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका और दम बखुद रह गया। पूरा आसाइश और आलीशान कमरा इस वक्त ऐसा मंजर पेश कर रहा था जैसे यहाँ कोई तूफान आकर गुजर गया हो। क्योंकि मेरा कैबिन गैलरी के सिरे पर था, इसलिए यहाँ होने वाले हंगामे की आवाजें मुझ तक न पहुंच सकी। मुझे यकीन होने लगा कि जहाज पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। मैंने जल्दी से जाकर अपने कैबिन से अपना पिस्तौल लिया और तेजी से कप्तान बुर्ज की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में राहदारियों और सीढ़ियों पर एक फर्द भी नहीं मिला था। हालांकि दिन हो या रात जहाज में चहल पहल रहती है, मगर इस तवील रास्ते में ना तो कोई फर्द मिला और ना ही कोई आवाज आई। एक लम्हे को मुझे ख्याल आया कि मैं इस वक्त जहाज पर अकेला हूँ। बाकी सब किसी वजह से जहाज छोड़ गए थे। मैंने इस अहमकाना ख्याल पर खुद को डांटा। जहाज छोड़कर कहाँ जाएंगे? खुले समंदर में? गड़बड़ होने का एहसास कवि से कवितर होता जा रहा था। मैं तकरीबन भागते हुए कप्तान बुर्ज में दाखिल हुआ। वो भी खाली पड़ा था, ऐसी तिजोरी की तरह के चोर जिसकी सफाई कर गए हों। कप्तान समेत अमले का कोई फर्द वहां नहीं था। हत्ता के जहाज का स्टीयरिंग व्हील संभालने वाला भी गायब था, जिसका अपनी ड्यूटी से हटना संगीन जराइम में शुमार होता है। मेरा दिल ठूपने लगा। मैंने झपट कर इंटरकॉम उठाया, लेकिन वो भी बेजान था। मैंने उसे वापस पटक दिया। मुझे अर्शे पर जाना चाहिए, किसी ने मेरे अंदर कहा। तो मैं कप्तान बुर्ज से निकलकर अर्शे की तरफ रवाना हो गया। खुली फिजा में आती मैंने महसूस किया कि फिजा और समंदर बिल्कुल पुरसुकून थे। कुछ घंटे पहले जारी तूफान का नामो निशान भी नहीं था। तारों की हल्की रोशनी में समंदर दूर तक हमवार नजर आ रहा था। बाएं दरमियानी अर्शे को अबूर करते हुए मेरी निगाह समंदर की तरफ उठ गई। बाएं कश्ती मौजूद थी, बल्कि कश्ती क्या, अच्छा भला बहरी जहाज था, मगर खलीज के मुकाबले में कश्ती ही नजर आ रहा था। इसकी रोशनियां बंद थीं, लेकिन खलीज की रोशनियों में इसके अर्शे पर हरकत करते हुए साए नजर आ रहे थे। अचानक मेरी अक्ल में आहट हुई। मैं तेजी से घूमा और फिर अपनी जगह मुंचमंद होकर रह गया। मेरे सामने ही जान गरे खड़ा था, वही जान गरे जिसे 20 घंटे पहले हमने बंबई में छोड़ा था। इसके हाथ में एक अदद राइफल थी और चेहरे पर मखसूस खबीसाना मुस्कुराहट। वो राइफल मेरी तरफ उठाने लगा था। खतरा सामने आ खड़ा हुआ था। तुम? मेरे मुंह से निकला। जान गरे अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उसने राइफल मेरी तरफ तानी, लेकिन उसका गोली चलाने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा था। वो मेरी हालत से माजूज होते हुए बोला, मुझे देखकर हैरत हुई है ना? मैंने खुद संभाल लिया। सरसरी से अंदाज में बोला, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। आज के दौर में सब कुछ मुमकिन है। तुम ये बताना पसंद करोगे कि इस वक्त राइफल बदस्त तुम खलीज पर क्या कर रहे हो? उसकी आंखें शैतानी अंदाज में चमकी। तुम देखना पसंद करोगे? मैंने हिचकिचाहट के साथ उस बात में सर हिला दिया। उसने राइफल से इशारा करते हुए कहा, मेरे साथ चलो, लेकिन रास्ते में कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना पछताने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। मिस्टर जोसेफ। यूसुफ, मैंने तस्दीक की और उसके बताई हुई समत में चल पड़ा। वो राइफल लिए एन मेरे अक्क में चला आया था। जहाज के बाकी लोग कहाँ हैं? तुम जल्द इनसे मिल लोगे। खलीज के पास लंगरअंदाज बोट किसकी है? फजूल सवाल मत करो, उसने पहली बार दुरुस्त लहजे में कहा। खामोशी से चलते रहो।
मैंने बेहतर समझा कि उसे मुश्तल करने की बजाय आने वाले हालात का इंतजार करूं। जल्द मुझ पर वाज़ेह हो गया कि हम जहाज के अगले हिस्से में वाक़े कार्गो वाले हिस्से की तरफ जा रहे थे। ये कैरेज 4 बड़े हाल्स पर मुश्तमिल था और यहाँ कंटेनर से लेकर छोटी पेटियों में बेशुमार अक़साम का हज़ारों टन सामान तिजारत मौजूद था। मैं सोच रहा था कि जान गरे मुझे इस तरफ क्यों ला रहा था। क्या मेरे बकिया साथी भी यही मौजूद थे? मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला जब मैंने कप्तान समेत खलीज के अमले के 30 अफराद को 4 नंबर के हाल में पाया। और इस वक्त वो जो काम कर रहे थे तो मैंने कभी ख्वाब में भी उसका तसव्वुर नहीं किया था। वो लोग मुख्तलिफ अक़साम के बक्स उठाकर लोडर की मदद से खलीज के बड़े कार्गो गेट के रास्ते के पास ही लंगर अंदाज छोटे बहरी जहाज तक पहुंचा रहे थे। इनमें गुप्ता से लेकर खुद कप्तान सलाहुद्दीन समेत तमाम अमला शामिल था। इनके अलावा हाल में 6 अदद मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो इन्हें जल्दी जल्दी काम करने को कह रहे थे। इनका रवैया ज़माना कदीम के किसी निगरान का सा था जो गुलामों से काम लेते थे। बस फर्क ये था कि इनके पास कोड़े नहीं थे। इनके हाथों में जदीद किस्म की खुदकार राइफलें थी। तुम लोग बहरी कज़ाक हो? मैंने हर से कहा। यही समझ लो, जानगरे ने खुश मिजाजी से कहा। अब जरा तुम भी इनका हाथ बटाओ, हमारे पास वक्त पहले ही कम है। सूर्य निकलने से पहले ये सारा काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। उसने घड़ी देखी। बादल ने खासा मैंने आगे बढ़कर एक पेटी उठाने में कप्तान सलाहुद्दीन की मदद की जिसमें गालबन ऑटो पार्ट्स थे। पेटी खासी भारी भरकम थी। मैंने सरगोशी में कप्तान से पूछा, ये क्या है कैप्टन? खामोश रहो, उसने आहिस्तगी से कहा। अभी ये लोग चले जाएंगे। आपको यकीन है? मैंने गौर करते हुए कहा। मेरा मतलब है कि ये हमें मार कर समंदर में भी डाल सकते हैं। कुछ नहीं होगा। कप्तान ने पेटी लोडर पर रखी, दूसरी पेटियों पर नजर जमाते हुए धीरे से कहा और मुझे मशवरा दिया, बोलने के बजाय बेहतर है खामोशी से काम करते रहो। हम में से कुछ अफराद सामान लोडर पर रख रहे थे और बाकी लोडर को धकेल कर दूसरे बहरी जहाज तक पहुंचा रहे थे। एक बार एक निगरान ने मुझे लोडर धकेलने का हुक्म दिया। मुझे धकेलता हुआ जहाज के दरवाजे तक ले गया। छोटे बहरी जहाज से एक फुलादी तख्ता खलीज तक आ रहा था जिस पर से सामान गुजार कर बहरी जहाज तक पहुंचाया जा रहा था। पामी कुछ अफराद सामान को जहाज के निचले हिस्से में पहुंचा रहे थे। जरा सी देर में मुझे इस बहरी जहाज का मुआयना करने का मौका मिला था। ये 50 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा 2 मंजिला बहरी जहाज था जिसका निचला हिस्सा कार्गो के लिए मखसूस था। इसके ऊपर कुछ ऐसा सामान नस्ब था जैसे ये माहीगीरी के लिए मखसूस हो, लेकिन जहाज पर माहीगीरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। खासतौर से वो नहीं थे जो माहीगीर कश्तियों की पहचान होते हैं। इसके बजाय इस जहाज पर कुछ छोटी करेने और आलात इसी तरह नस्ब थे कि यह जहाज बार बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। इसके एक पहलू में एक मशीनी निज़ाम नस्ब था जिसकी मदद से एक फुलादी तख्ता 10-12 फुट के फासले पर किसी भी दूसरे बहरी जहाज से मिल सकता था। मैं सोच रहा था कि जानगरे का इन लोगों से क्या ताल्लुक था। मुझे मुसल्ला निगरान और कज़ाक मुख्तलिफ रंगो नस्ल के अफराद जहाज पर नजर आ रहे थे। इनमें अफ्रीकी भी थे और अरब भी थे। मशरिकी बैद से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी नजर आए जबकि बरसगीर के लोग भी इनमें शामिल थे। गोया ये बहरी कज़ाकों का कोई बैनुल अक़वामी किस्म का गिरोह था। इनमें सिर्फ एक जानगरे ही सफ़ेद फाम था। इन अफराद में कई नकाबपोश भी थे जो इस सारे अमल की निगरानी कर रहे थे। अगले 2 घंटे के दौरान मैंने कज़ाक जहाज के कई चक्कर लगाए और हर बार मैंने खासी तफसील से इसका मुआयना किया। अपने जहाज को छुपाने के लिए इन्होंने इसे तारीकी में रखा था। शायद मकसद ये था कि करीब से गुजरता कोई बहरी जहाज उसे देखने न पाए। एक मसरूफ बैनुल अक़वामी शाहराह थी और यहाँ 24 घंटे बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहती थी। सूर्य निकलने ही वाला था, लिहाजा मुसल्ला निगरान जल्दी का शोर मचा रहे थे। इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी थी और एक को तो मारा भी था जो सुस्ती से काम ले रहा था। मैंने महसूस किया कि कप्तान समेत वाला अफसरान के साथ एक हद में रहकर पेश आ रहे थे। वो ना तो इन्हें गालियां दे रहे थे और ना ही इन्होंने किसी पर हाथ उठाया था, जबकि निचले दर्जे के अमले के साथ वो बेहद दुरुस्तगी से पेश आ रहे थे। जानगरे बार बार घड़ी देख रहा था। मैंने देखा कि वो सिर्फ मखसूस सामान उठा रहे थे, यानी इन्हें पहले से अपने मतलूबा सामान के बारे में मालूमात थी। इसका मतलब था कि जहाज में भी इनका कोई एजेंट था। मुमकिन है ये मुखबरी जानगरे ने की हो जिसकी कज़ाकों के साथ मौजूदगी ही काफी थी।